Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माई चैनल मैथोलॉग्राफिया. होप यू ऑल आर फाइन. सो मैं पढ़ा रही हूँ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 in which we have to do verify that double conjugate of a complex number equal to complex number for the following complex number. Like what you have to do, ये आपके पास एक नंबर है complex number. As you know that कि हम इनको डिनोट करते हैं z से. So पहले हम इसको सपोज कर लेंगे that let's suppose z, it is denoted by z. This is the complex number 4/7 plus 9/10 iota. ठीक है, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू z. अभी हम इसका कॉन्जुगेट हटा देते हैं. नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड. सो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, बार लगा देंगे. इट मीन्स वी हैव टू टेक अ कॉन्जुगेट प्लस 9/10 iota. As you know that this is the first number without iota is a real number, and the second number that is the imaginary number that is with the iota. So taking conjugate both side, लेफ्ट साइड पे हमने मेंशन कर दिया, राइट साइड पे मैं मेंशन कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द कॉन्जुगेट, आपको साइन अपोजिट करने होते हैं. लाइक इस वक्त क्या है साइन प्लस. सो आप क्या कर देंगे 4/7 माइनस 9/10 आयोटा. ठीक है गाइज, ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट था. नाउ यू हैव टू टेक अगेन कॉन्जुगेट अगेन. टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन, टेकिंग conjugate again both side. So what you have to do, taking double conjugate 4/7 minus 9/10 आयोटा. नाउ अगेन आप कॉन्जुगेट लेंगे तो अब होगा क्या, पहले आपके पास प्लस साइन था. ठीक है, इसको आपने कॉन्जुगेट के जरिए माइनस कर दिया. लाइक अपोजिट साइन करना है हमने. अब अगेन जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा अगेन प्लस. दैट इज 4/7 प्लस 9/10 आयोटा. So here what we have proved that हमारे पास पहले क्या था नंबर z is equals to 4/7 plus 9/10 iota. Again you can see that हमारे पास डबल कॉन्जुगेट के बाद वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन में था. So here we have done proved that double conjugate of a complex number, sorry ये नहीं होगा, simple z होगा. double conjugate of a complex number equal to the complex number that is denoted by z. So guys we have completed this question. ये बहुत ईजी है. फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से स्टेप्स मैंने ज़्यादा किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो. अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे तो उसके कुछ स्टेप थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में इजीली एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. minus 9/11 plus 10/9 iota. What you have to do, सबसे पहले तो आप सपोज करते हैं. So let's suppose z is equals to minus 9/11 plus 10/9 iota. Now taking conjugate, ये बात याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट में जो सेंटर का साइन होता है वो चेंज होता है. ये स्टार्टिंग में जो माइनस साइन नजर आ रहा है दैट विल नॉट बी चेंज्ड. ओके, सो अभी हम तो प्लस ही लिखेंगे. नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट, जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे द साइन विल बी चेंज इनटू माइनस. सो हियर इज द फर्स्ट कॉन्जुगेट. नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन, double conjugate, so what will be the sign? The sign will be changed again to the plus sign. 9 minus 9/11 plus 10/9
9 iota. So here we have proved that double conjugate of a complex number equal to complex number. So here we have proved. Got it, guys? Now move on to the next part number 3. Okay students, we are going to start part number 3, that is 1/2 minus 3 iota. So first of all, let's suppose that this number equal to 1/2 minus 3 iota equals to z. Now taking conjugate, so when we take conjugate, the sign will be changed. So it will be 1/2 plus 3 iota. सही है, that is our first conjugate. Now taking again conjugate, it will be 1/2 minus 3 iota. That is the same number as previous. So here we can say that we have proved the double conjugate of a complex number equals to z or complex number. So here we have proved. Now fourth part, it is very easy. सारी क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं करना. डबल कॉन्जुगेट मीन्स दोबारा से उसको उसी वैल्यू में रिप्लेस कर देना है. ठीक है, सो अगेन करेंगे इसको. लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू 2 plus 3 iota equals to z. Now taking conjugate, 2 plus 3 iota. Now it will be 2 minus 3 iota. Okay. Now taking conjugate again, the answer will be 2 plus 3 iota. So here we have proof that double conjugate equals to complex number. Okay guys, now we have done part 4. Now move on to the next part. Okay student, part number 5 करते हैं. Let's take again z equals to minus 2 minus 3 minus 10 upon 9 iota. First of all you need to simplify it before going to solve, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह साइन है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस. सो 3 यहीं रहेगा और 10 अपॉन 9 आयोटा. आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर दें नंबर्स को. सो 3 10s are 30 अपॉन 9 आयोटा. सो अब आपके पास एक क्वेश्चन सही से आ गया है. अब इस पे आप अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट. सो द आंसर विल बी माइनस 30 अपॉन 9 आयोटा. ये तो सिंगल कॉन्जुगेट का आंसर है. नाउ टेकिंग अगेन conjugate, so the answer will be minus 2 plus 30 upon 9 iota. That is our question. क्यों? क्योंकि हमने जब सिंप्लीफाई किया था तब आपके पास क्या आंसर आ गया था, प्लस 30 अपॉन 9. यानी कि हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया था. इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह भी रहने दें तो भी बात एक ही है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होना ही है. सो वी हैव प्रूव्ड दैट डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है guys, now move on to the last part of this question, part number 6. So what you have to do, again let's suppose this number equal to z 3 iota y. ठीक है, taking conjugate 4x plus 3 iota y. conjugate लेंगे, so answer will be 4x minus 3 iota y. Now taking conjugate again, so 4x minus 3 iota y will be changed into 4x plus 3 iota y. That is our already the number that we have given in the question. So here we can say that double conjugate of a complex number equals to complex number. Here we have done this question. Now move on to the question number 5.
Okay student, in this question number 5, what you have to do, find the values of x and y when. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास दो वैल्यूज गिवन होंगी x और y की, एक होगी रियल नंबर में, आप ये देख सकते हैं x के साथ आयोटा नहीं है, सो ये एक रियल नंबर है। इसी तरह आप इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे देखें तो एक नंबर विदाउट आयोटा है, दैट इज रियल नंबर, और एक नंबर विद आयोटा है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। सो हम कंपेयर करेंगे रियल नंबर को रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से। लेट सपोज ये x बराबर है किसके, इमेजिनरी नंबर के, दैट इज अवर नंबर इज -5। और अगर हम देखें y की साइड की तरफ, सो y आयोटा के साथ है और 5 भी आयोटा के साथ है, सो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज अ इमेजिनरी नंबर। सो वी कैन राइट इट विदाउट आयोटास, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू दिखानी है। सो वी कैन से दैट x is equals to -5 and y is equals to 5. सो हियर इज द आंसर। x और y की अगर हम वैल्यू फाइंड करें सेट की फॉर्म में, सो -5 and 5, क्योंकि हम x की वैल्यू कभी भी लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं x, y, और x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट्स वेरी सिंपल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 2। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपको जो वैल्यूज गिवन है x और y की, यहाँ पे स्क्वायर में गिवन है, ये स्क्वायर में है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू रियल नंबर है, दैट इज 16/9, क्योंकि विदाउट आयोटा है। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9। और अगर हम y को देखें, y बराबर है इमेजिनरी नंबर के, सो इसकी वैल्यू भी इमेजिनरी नंबर ही होगी, दैट इज 9/25, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर में है वैल्यू, तो हम इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे। सो क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अच्छा, ये क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ये दोनों पर है, क्योंकि मैंने पूरा कवर किया है। सो पहले तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी x, और देखना ये कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 4। सो हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्योंकि अगर हम अब सेपरेट अंडर रूट लगा दें तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट भी कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर से इसका अंडर रूट भी कैंसिल हो गया। सो आंसर विल बी 4/3। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी सिंपल। x की वैल्यू तो हमने जैसे फाइंड आउट कर ली, इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड। सो आपने बोथ साइड अंडर रूट लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, y इज इक्वल्स टू, अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। सो अगर हम इसको सेपरेट ले लें तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सो हियर इज द आंसर, x and y is equals to 4/3 and 3/5। गॉट इट, इज इट विजिबल? अच्छा ओके गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एडिशन स्टेप यही था कि आपने स्क्वायर को कैंसिल आउट करना था, दैट्स इट। एंड दैट वी हैव डन ऑलरेडी कि स्क्वायर को कैसे ख़त्म किया जाता है, स्क्वायर रूट से ख़त्म किया जाता है। नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 3, दैट इज, अच्छा सेम यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे भी स्क्वायर है। अच्छा, एक के ऊपर स्क्वायर है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इजकल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अच्छा, तो हम ये कर लेते हैं। पहला नंबर जो है वो रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। सो पहले ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल है 121 के, इसी तरह x/3 आयोटा बराबर है माइनस 9/5 आयोटा के, ठीक है। पहले हम y को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो हमने स्क्वायर रूट, अंडर रूट कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सेम नेम है। सो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, सो द वैल्यू ऑफ y इज 11।
नाउ मूव ऑन टू द वैल्यू ऑफ x। सो अब आप ये देखिए कि x हमें फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे एक नंबर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम आयोटा के साथ लिखेंगे नहीं, इसको आयोटा हटा देंगे। x/3 माइनस 9/5। x क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो -9 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 27/5। सो वैल्यू ऑफ x इज 27/5। दैट्स इट। इसका स्क्वायर नहीं था तो हम इसे कैंसिल आउट नहीं करना था। नाउ मूव ऑन करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 में सेम यही है, इट्स अ लास्ट पार्ट। और करना आपको क्या है कि दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x और y आपको सिंगल वेरिएबल नहीं दिया हुआ। सो इनकी वैल्यूज को पहले मूव करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल नंबर कौन से हैं। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। सो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले √5/3x इक्वल्स टू 6 √3/√2। इसी तरह हम y को कंपेयर करें। तो ये आ रहा है -3/2 y, और ये बराबर हो जाएगा 2√2/9 के। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, अगर हम पहले x को देख लें। सो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2। गॉट इट। और यहाँ पे हम देखें √5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब √2 और √5 ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि √, से जो बाहर नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3s are 18 और √3 एज इट इज रहेगा। इसी तरह √2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 2s are 10। ठीक है, अब ये कुछ मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो इसको हम यहीं वाइंड अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। सो हियर इज द आंसर ऑफ x, दैट इज 18 √3/√10। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, दैट इज -3√2y। अच्छा, क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो नंबर डिवाइड हो रहा है हम इसको मूव करेंगे। √2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 2√2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, क्योंकि हम इसको सेम √ में रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों √ की वैल्यूज हैं। और क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब -3 है तो -3 ही मूव होगा पूरा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये हो जाएगा 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा -3 × 9। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि 4 जो है वो स्क्वायर है किसका, 2 का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 जो स्क्वायर है √ से ही कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3 9s are 27। सो द आंसर विल बी, क्योंकि ये 2 बाहर आ गया तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये 2 × 2 कर देंगे, यानी कि इसको 4 कर देंगे, लेकिन मैं आपको इसको शो करके दिखा रही हूँ। सो द आंसर विल बी 2 2s are 4/27 और ये माइनस की वैल्यू होगी। So here is the answer. So in this way we have solved our question number 4 and question number 5, all parts. As you can see, if you want to take screenshot, you can take it, ताकि आप इसको देख के एक दफ़ा समझ लें दोबारा और इसको अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आपको परफेक्शन मिलेगी। ठीक है गाइस, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।